I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to path on the left side, put it up in your mind? Good morning guys. So today we are in the beautiful city of Rishikesh, Jai Maa Gange. We are at Neem Beach right now, and here we have with us the all new Suzuki V-Storm 250, recently launched in the Indian market. आज हम करेंगे इसके बारे में बात, इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या खामियां हैं। तो पहले बात करते हैं इसके इंजन की। The engine is a 249cc single cylinder oil cooled, mated to a 6-speed transmission which produces 26.5 PS of power and 22.2 Newton meter of torque. Now as you can see the wind screen, that is a slightly taller one, but it is not adjustable. So this is a windscreen, and the light in the front and the rear is LED. It looks like this. It's a all LED headlight in the front and the rear. The only issue is the indicator which Suzuki has given is not LED. So you can see that also. Now this bike comes with standard knuckle guard. You have the engine cowl which you can see down there as a protection for your engine. It also comes with a grab rail for the carrier. You can carry the luggage, which Suzuki specifies you can carry almost 6 kgs of luggage out there. If we talk about the exhaust, it's like a dual muffler. The engine sound is smooth, I would say. It's not super loud. Talking about the suspension, it's a standard 120 mm suspension travel in the front. तो अगर हम पीछे suspension की बात करें, ये adjustable suspension आता है. This one is adjustable up to 5 steps. So all the reviews I was watching recently about V-Storm, they all said that the suspension is quite hard. So I have tried this bike on road, off road, everywhere. I can say, if you adjust the suspension according to your setting, the bike is pretty much comfortable. जो इसकी seat height है 835 mm. Now this seat height is perfect for anyone who is almost 170 plus centimeter. अगर आप उससे छोटे हो तो मे बी आपको ट्रबल हो. I stand at 175 centimeter, and trust me guys, I was standing on the bike, I was literally off-roading. तो आपके जो पैर है वो लिटरली आपके टैंक को हक कर सकते हैं, और आपके जो हैंडल बेसिकली हाइट है, तो मुझे अपने हाइट के हिसाब से परफेक्ट लगा. मुझे हैंडल रेजर्स की ज़रूरत नहीं है जो एक्सेसरी में आता है. मुझे सीट हाइट लो करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी, एंड अगेन आई स्टैंड 175 सेंटीमीटर. अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस नॉर्मली ऑफ रोडर में 200 प्लस हो तो अच्छा रहता है. इसका है 205 mm, विच इज़ सफिशिएंट इनफ टू कॉन्कर एनी ट्रेन. तो आज आप देख सकते हैं हम लोग हैं इसके नेचुरल हैबिटेट में. ये बिल्कुल हम ऑफ रोड कर नीम बीच पे लाए हैं. बहुत सारे पत्थर थे बीच में, बहुत सारा ऑफ रोड ट्रैक था, और वहाँ से लाने में इसको कोई दिक्कत नहीं हुई है. तो अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड में, सुजुकी ने यहाँ प्रोवाइड करा है एक USB आउटलेट. इसके अंदर एक ब्लू लाइट भी जलती है अगर आप इग्निशन ऑन करोगे. तो बहुत ही सही चीज़ दी है. बेसिकली आप अपना मोबाइल ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दी प्रोटेक्शन, बेसिकली सुजुकी प्रोवाइड कर रही है आपको डुअल डिस्क ब्रेक, साथ ही में दोनों में ABS है, डुअल चैनल ABS है फ्रंट एंड रेयर में. इशू ये है कि आप रेयर ABS ऑफ रोड के लिए ऑफ़ नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी एक हैक है. बेसिकली यू कैन नॉट स्विच इट ऑफ, बट यहाँ पे 2 ऑप्शंस है हमारे पास. अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट आई टेल यू इन शॉर्ट, देयर इज़ अ वायर इनसाइड दिस.
यहाँ पे एक वायर होता है, एक प्लग होता है, जिसको आप अगर अनप्लग कर दोगे अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट रिव्यू में, अगर इसको आप अनप्लग कर देते हैं तो रेयर जो ABS है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क, सो यू कैन यूज़ इट प्रॉपरली इन द ऑफ रोडिंग सेक्शन। तो जो रेयर टायर है वो 140 सेक्शन है, फ्रंट टायर इज़ 100 सेक्शन। दिस इज़ अ डुअल पर्पस टायर। इसका प्रॉस एंड कॉन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसकी ऑन रोड और ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसी है। बात करते हैं इसके फुट रेस्ट की, तो यहाँ पे एक रबर पैडिंग आप देख सकते हैं दी है, ये आप रिमूव भी कर सकते हैं फॉर ऑफ रोड एक्सपीरियंस। तो अगर हम बात करें इसकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, यहाँ पे हम ऑन करते हैं और ऐसा आपको एक तरह का अपीयरेंस आता है, आपको वेलकम स्क्रीन आती है जिसमें वो कहता है गो। इसमें सबसे बड़ी बात है डिजिटल स्क्रीन है और आपको यहाँ किलोमीटर्स दिखा रही है, यहाँ पे आपको दिखा रही है गियर इंडिकेटर, और लेफ़्ट साइड आपको जो खाली दिख रही है बेसिकली उस पर GPS के नेविगेशन के लिए है। इसमें 2 स्विचेस है, लेफ्ट में आप देख सकते हैं, जो ऊपर वाला है अगर आप दबाते हैं उससे आपको दिखेगा वोल्ट, आपके ट्रिप मीटर, ट्रिप A, ट्रिप B। आप फिर से ऊपर वाला दबाइए तो आपको दिखता है कितनी एवरेज। अब इसकी एवरेज दिखा रही है 37.5, जो अभी नई लेट बाइक है, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स चली है सिर्फ, तो आई थिंक दैट्स अ गुड एवरेज। अगर आप एक और बार दबाते हैं तो इसमें आप फिर से ट्रिप्स ही दिख रही है आपको। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहीं भी आपको फ्यूल टू एम्प्टी जो आपका रेंज आता है वो नहीं दिखता है। अगर हम नीचे वाला बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार आ जाता है पेयरिंग मोड, तो ये आपका ब्लूटूथ आपके इसके फ़ोन के साथ पेयर हो जाएगा और उससे आप डायरेक्शन, बेसिकली आपको ये डायरेक्शन दिखाएगा, आपकी कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप SMS आप इससे रिप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये ग्लिच बेसिकली जो आया है उसमें ये है कि मैंने फ़ोन कनेक्ट करा है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद मेरा फ़ोन ऑटो डिस्कनेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई दैट इज़ हैपनिंग। बात करें इस बाइक की वेट की, तो ये बाइक ऑलमोस्ट 167 kgs वेट करती है, विच इज़ आई वुड से बहुत ईजी है हैंडल करना ट्रैफिक में। मैं अगर इसकी मैनूवरिंग की बात करूँ, आई ओन H2 जो ऑलमोस्ट 260 kgs है, तो ऑफकोर्स मेरे लिए बाइक बहुत लाइट थी। जो सीट हाइट है बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए, 175 सेंटीमीटर। अगर मैं इसमें बैठता हूँ मेरे दोनों पैर नीचे आराम से टच हो जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इतना है कि आप किसी भी ऑफ रोड टेरेन से निकाल सकते हो। नाउ इज़ दिस बाइक एन ऑफ रोडर, एन एडवेंचर, किस कैटेगरी में आप डालोगे? तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सुजुकी की, सुजुकी इसको प्रमोट कर रही है एज एन एडवेंचर टूरर मशीन। जो सीट है वो इतनी कुशनी है, आप इसमें 4 घंटे बैठ जाओ, आपको कोई फटीग नहीं होगा। रेयर सीट में कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज मैंने पिलियन एज अ पिलियन में बैठा नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी को भी एज अ पिलियन बैठाया है, बट इट इज़ ब्रॉड इनफ। अगर हम बात करें ऑफ रोड एंड ऑन रोड की, जो ये टायर्स है बेसिकली, सो टायर्स आर डुअल पर्पस, बट आई फेल्ट समथिंग दैट ऑन रोड अगर मैं टारमेक में चला रहा हूँ और हल्का सा ग्रेवल आता है, तो ट्वाइस और थ्राइस येस्टरडे जो मेरा फ्रंट टायर है वो वॉबल कर रहा है, तो इट डिड नॉट इन्फ्यूज़ दैट मच कॉन्फिडेंस इनसाइड मी। अगर मैं ऑफ रोड की बात करूँ तो टायर नेक्स्ट टाइम अगर मैं अपग्रेड करूँगा, ऑफकोर्स मैं चेंज कराना चाहूँगा, बट साथ में ये है कि ऑन रोड ऑफ रोड के लिए टायर ठीक ठाक है। अभी मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा जिसमें अर्पित, हु ओन्स KTM 390 एडवेंचर, ऑफकोर्स कंपैरिजन नहीं है, KTM 250 के साथ कंपैरिजन है इसका, नॉट द 390, बट ही राइड्स 390। उसका एक्सपीरियंस क्या था आप सुनिए। अर्पित, तो अभी आपने बाइक चलाई, कैसी लगी मतलब ऑफ रोड करने में? इसके साथ ये है, आपको थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा अपने साथ चलाने के लिए, यूज होने के लिए, कि उसका फ्रंट एंड थोड़ा हैवी है अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो KTM के मुकाबले। बाकी तो लो एंड इसमें ज़्यादा बेटर है। मच में ये है कि इसके टायर इतने ग्रिपी नहीं जितने KTM के हैं। अच्छा, बड़ी बात। अच्छा, आपका फ्रंट एंड हैवी है, आपको काफ़ी ज़्यादा वेट यूज़ करना पड़ रहा है, वेट एक वो है। बाकी इज़ गुड। अभी इतना तो चलाया नहीं, इसके 3-4 चक्कर ही ट्रेल के यूज़ करे हैं। जब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कितनी कैपेबल है। बट KTM, सो बेसिकली KTM के आप बता रहे हो टायर ज़्यादा ट्रैक उस हिसाब से ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बेटर है, और हैंडल जो है इसका 390 एडवेंचर ज़्यादा हैवी ऑफ रोड कर सकते हो इसके मुकाबले अभी के लिए, ठीक है अभी के लिए, क्योंकि इसका फ्रंट एंड मुझे काफ़ी हैवी लग रहा है। या तो ये है कि मैं KTM चला रहा हूँ उसकी वजह से उसको मुझे लग रहा है, बट अगर मेरी पहली बाइक होती शायद मैं ढीला हल्का लगता मे बी। बट एनीवे सुजुकी वी-स्टॉर्म इसको प्रमोट नहीं कर रही है एज एन ऑफ रोडर, प्रॉपर एडवेंचर टूरर पे बोल रही है। बट ऑफ रोड ऑफकोर्स 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आप कह सकते हो कि ऑफकोर्स थोड़ी ऑफ रोडिंग, माइल्ड ऑफ रोडिंग तो करेगी। अगर आप एक्स शोरूम जाते हैं 2,12,000, 2,12,000 ऑलमोस्ट 13 रुपीज़ समथिंग पड़ती है। ऑन रोड आप कह सकते हो 247, 248 की आपको पड़ जाएगी। क्या ये वर्थ है? अगर मैं इसका प्रॉस और कॉन्स की बात करूं अब एंड में वीडियो की, पहले करते हैं इसके प्रॉस की बात, इसके बेनिफिट, इसकी फ़ायदा क्या है इस बाइक को लेने का। ये बाइक उनके लिए बहुत अच्छी है जिनको एक मिड सेगमेंट बाइक चाहिए। 250 cc इज़ इनफ
यू कैन ईजिली टूर अराउंड 100, आप क्रूज़ कर सकते हो इस पर 100, 110। बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है। 120 mm शायद लगता है आपको कम होगा, बट मैं इसको ऑफ रोड लेकर गया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बाइक ऐसी है कि इसकी रोड प्रेजेंस, गाइस आई मस्ट से, जिस दिन मैंने परचेज़ करी है, अगर आप 2.5 लाख लेकर चलते हो, 2,50,000, और आपको ऐसी रोड प्रेजेंस मिल रही है, लोग आते हैं, पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कितनी सीसी है, कौन सी बाइक है, विच बाइक इज़ दिस, हाउ मच इज़ दी एवरेज, हाउ इज़ दी कम्फर्ट। सो ऑफकोर्स आई कैची कलर है, इसमें एक ऑरेंज कलर आता है, एक ब्लैक आता है, एक येलो आता है। अगर आप लेना चाहते हो, इफ़ यू आर लुकिंग इन द मार्केट फॉर समथिंग वेयर यू कैन टूर whole of India, you want to go to Ladakh, you want to do a little bit of off-roading, you want to be comfortable at the rides, and at the same time आप daily run के लिए। If I talk about the bike handling in the traffic, I must say बहुत ही लाइट बाइक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ट्रैफिक में। आप easily इसको फ्लिक कर सकते हैं ट्रैफिक से, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कहीं ट्रैफिक में दिक्कत लगी हो इस बाइक पे। तो अब आप देख सकते हैं इस बाइक को मैं ऑफ रोड ले जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आ रहा है। आई मीन आप इस पर खड़े हो सकते हैं, ऐसे खड़े होकर आप चलाइए, आप इसको स्टोन्स के ऊपर ले जाइए, ग्राउंड क्लियरेंस इनफ है 205 mm का। एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट आई एम फ्लिकिंग दिस बाइक थ्रू द ट्रैफिक। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक राइट नाउ इन ऋषिकेश। आई एम गोइंग थ्रू दिस हाईवे ऑफ ऋषिकेश विच इज़ ऑल जैम पैक्ड बिकॉज ऑफ टूरिस्ट, and as you can see I am having no issue taking this bike through the traffic. It has enough power, low end torque, even at 2000-3000 rpm at second gear and third gear I can flick through the traffic easily. अब बात करते हैं कॉन्स की, बाइक में क्या क्या खामियां हैं। So first of all, as I said, it's a digital console, but I would like a little more, you know, options out there. लाइक मुझे कहीं भी यहाँ नहीं दिखा कि कितनी रेंज, मतलब ऑफकोर्स फ्यूल गेज दिखा रहा है कि 3 bars है, बट डिस्टेंस टू एम्प्टी जिसको हम बोलते हैं। देन ऑफकोर्स देयर वाज सम ग्लिच एज आई टोल्ड यू विद द कनेक्शन विद द सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप। माई फोन वॉज गेटिंग डिसकनेक्टेड एवरी 10 seconds. नाउ आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट वेदर इट्स द बाइक फॉल्ट और माई फोन्स फॉल्ट, विच आई फिगर आउट एंड लेट यू नो। तीसरी चीज़ ऑफकोर्स जो सस्पेंशन ट्रैवल है 120 mm इज़ इनफ, बट स्टिल आई विश कि थोड़ा सा ज़्यादा देते तो अच्छा होता। और एक और चीज़, अगर इसके टायर थोड़े और बेटर क्वालिटी के होते जो दोनों चीज़ें हैंडल करते, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऑफ रोड पे कोई इशू नहीं आया, बट टारमैक में लीन कर रहा था, ठीक है, जहाँ भी ग्रेवल आई इसका जो कॉन्टैक्ट है टायर का वो लूज़ हुआ एंड आई लॉस द कॉन्फिडेंस, यू नो। तो मेरे को वहाँ जो कॉन्फिडेंस था बाइक पे वो कहीं नहीं दिखा। इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्यूल टैंक, जो फ्यूल टैंक है दैट इज़ 12 liters, विच इज़ ऑफकोर्स अनदर I would say a demerit for this bike, because fuel average, as I showed you, is almost 35 to 37, which the instrument console is showing. But I wish there was a bigger fuel tank, at least 15-16 liter. That would have made it a proper tourer for me. Another demerit, as I would tell you, is I could not figure out a switch for hazard light. Now that is a must. Hazard light तो देनी चाहिए थी। आपको fog होगा, कुछ होगा, आप एक इंडिकेटर नहीं चला सकते हो, तो there is no button out here. द फ्रंट सस्पेंशन आई कैन नॉट एडजस्ट। तो ये थोड़े इसके डीमेरिट्स है इस बाइक के। अब आप ऑफकोर्स 250 से कंपेयर करें, बहुत अच्छे प्राइस पे लॉन्च हुई है। एज आई टोल्ड यू दी एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 2,12,000। 250 cc KTM इससे महंगी है। आप बेनेली पे जाओगे TRK 251, दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव। सो आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉपर मशीन, बट एट द सेम टाइम Suzuki should have provided an extra option with extra money. You know, you could charge the customer 10,000, 15,000 rupees and could have provided all those features which as I talked about, जो इसके basically इसमें मेरे को लगा एक lacking है जो होने चाहिए थे। तो guys बहुत फन किया है ऋषिकेश में। It was an amazing experience being here. Almost sun is about to set. We had amazing experience with this bike, V-Storm 250. I really love it, not because I own it, but it's my genuine, you know, experience and my genuine review for you guys out there. So if you have any questions regarding this bike or anything else, you can write down in the comment section. I'll try to answer you guys. Also, you can follow my Instagram channel, which is again the same as the YouTube channel. It is The Biker Doc, TheBikeRDOC. You can contact me there. I'll try to answer your questions. So that's all guys. हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऋषिकेश से जय माँ गंगे, हर हर गंगे।